اردو سٹوریز۔ کار بہروپیہ تھا، ابھی ابھی وہ ہیرا پھیری کے جرم میں 2 سال کی سزا کاٹ کر آیا تھا۔ وہیں اس کی دوستی ناگا سے ہوئی تھی۔ ان دونوں نے جیل میں ہی پلان بنایا تھا کہ سادھو بن کر بھولے لوگوں کو اچھے سے لوٹا جا سکتا ہے۔ ناگا جیل سے 3 سال بعد چھوٹ کر ایک دن جب گاؤں پہنچا تو سادھو کے بھیش میں بڑی ہوئی داڑھی دیکھ کر، ارے ناگا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور سادھو کیسے بن گئے؟ میں 3 سال اتراکھنڈ کے پہاڑوں اور جنگلوں میں گھوما، وہیں پر میری ملاقات بابا جگن ناتھ اور جگا بابا سے ہوئی۔ یہ کرشمائی بابا ہیں، فائل ماضی زمانے حال، فائل مستقبل کے جانکار ہیں۔ کیا سچ مچ اتنے بڑے بابا ہیں؟ اور نہیں تو کیا۔ آداب بابا، میرے مستقبل کے متعلق کچھ بتائیے۔ بابا دن میں صرف 1 مرتبہ ہی بولتے ہیں، اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو کاغذ کی پرچی پر اپنا نام لکھ کر دے دو، جگا بابا آپ کو کل بتائیں گے۔ رات میں ناگا کشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ نکاح کے 10 سال بعد بھی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اگلے روز 10-12 افراد ناگا کے گھر جگا بابا سے ملنے آتے ہیں۔ بولو جگا بابا کی جے، جگا بابا کی جے، جگا بابا کی جے۔ کشن ادھر آؤ، 12 سال کی عمر میں تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، 20 ورش کی عمر میں تمہارا نکاح بغل کے گاؤں کے ویدیہ سشیل پنڈت کی بیٹی لکشمی سے ہوئی۔ 23 سال کے جب ہوئے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا۔ 27 سال کی عمر میں تمہارے یہاں بہت ڈاکہ پڑا اور اسی سال تم موت کے منہ سے واپس آئے۔ 2 روز بعد تمہاری 40ویں سالگرہ ہے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ تمہاری اور تمہاری بیوی کی ایک ہی خواہش ہے کہ تمہارا اپنا بچہ ہو۔ کشن جگا بابا کے پیر پکڑ کر بولا، جگا بابا کی جے۔ بھیڑ میں جے جے کار ہونے لگی۔ بابا آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا بھلا کیجئے بابا، کوئی اپائے بتائیے۔ اٹھو بچہ، ہرش پر ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ستارہ ہے، وہی اس کا نصیب طے کرتا ہے۔ تمہارا ستارہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں اپنے کرشمائی طاقت سے درست کر سکتا ہوں، لیکن اس میں 10,000 کا خرچہ آئے گا۔ بابا آپ پہنچے فقیر ہیں، میری کشتی پار لگائیے، میں کل ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گا۔ بابا جا بچہ، تیرا بھلا ہوگا۔ جگا بابا کی جے، جگا بابا کی جے۔ چلیے جناب، اب بابا کے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جس کو اپنی زندگی میں خوشحالی چاہیے وہ اپنی پرچی پر نام لکھ کر جمع کروا دے۔ سبھی لوگ اپنی اپنی پرچی جمع کرا دیتے ہیں۔ ادھر کل رات ہی ناگا نے جگا کو کشن کے بارے میں تمام جانکاری دے دی تھی۔ اسی کارن سبھی کے سامنے آج جگا نے رنگ جمایا۔ پورے گاؤں میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ جگا بابا کے پاس دیویہ شکتی ہے۔ گاؤں سے سبھی کے یہاں سے پھل، دودھ، دہی، سبزی، پکوان، پیسے اتیادی کچھ نہ کچھ جگا بابا کے پاس آنے لگے۔ ناگا کے گھر کا آنگن بھر گیا۔ جگا بابا کی جے، جگا بابا کی جے۔ سر جی، بابا ابھی کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، یہ ان کے آرام کرنے کا وقت ہے۔ ارے بیٹا ناگا، تم تو میرے بیٹے جیسے ہو، تمہارے والد میرے ہاں کام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ بابا سے ملوا دو بس، میں چلا جاؤں گا پھر۔ دیکھیے سیٹھ جی، میں صرف بابا کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں۔ آپ ایک پرچی پر اپنا نام لکھ کر دے دیجئے اور آپ کا نمبر 2 دن بعد آئے گا، تب بابا سے ملاقات کر لیجئے گا۔ بھی 150 افراد کے بعد آپ کا نمبر آئے گا۔ بابا کے دربار میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں 2 روز بعد ہی بابا سے ملنے آ جاؤں گا۔ یہ کچھ سامان لے کر آیا تھا بابا کے لیے، پلنگ، گدا، صوفہ، چادر وغیرہ وغیرہ، اسے کہاں رکھوا دوں؟ اور کچھ خدمت ہو تو بتانا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو بابا کو کسی چیز کی خواہش نہیں، لیکن اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو ندی کے کنارے ایک بڑا سا کٹیا بنوا دیجئے، کیونکہ لوگوں کو ملنے کے لیے میرا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے۔ بیٹا تم کہو تو بابا ہماری حویلی میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر بابا کو ایکانت چاہیے تو ندی کنارے آج ہی میں کٹیا بنوا دیتا ہوں، لیکن بابا سے کہہ کر میرے نام کے جو ستارے ہیں آکاش میں اس کو درست کروا دو بیٹا۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، لیکن اسے درست کرنے میں 20 لاکھ روپے لگیں گے، سوچ لیجئے۔
ठीक है बेटा, मैं आज शाम को करोड़ी मल से पैसे भिजवा देता हूँ। देर रात तक नागा के घर लोगों का तांता लगा रहता है। नागा और जग्गा मिलकर 4 बजे सुबह तक पैसे गिनते हैं। पूरे 32 लाख होती है। दोनों एक दिन की कमाई 32 लाख होने पर उछल जाते हैं। इस तरह तो जल्द ही हम लोग दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ भाई, इससे बेहतर और कोई कारोबार नहीं है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। जग्गा बाबा के पास नागा ने पर्ची वाले सभी लोगों के बारे में जग्गा को बता रखा था। जग्गा ने एक एक करके सभी के बारे में बताया। सभी लोग अपने बारे में बाबा के मुंह से सुनकर ताज्जुब हो रहे थे और बाबा की जय जयकार हो रही थी। सभी को उनके नाम के सितारे होने के बारे में बताया जा रहा था और उसे ठीक करने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही थी। आदाब बाबा, मैं मुखिया रामधन हूँ। आप हमारे गांव में तशरीफ लाए, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। सेठ नागरमल ने आपके लिए कुटिया बनवाई है। मेहरबानी करके चलिए और आप वहीं रहिए। जरूर मुखिया जी, आपके सितारे बता रहे हैं कि आप जल्दी ही सूबे के वजीरे आला बनने वाले हैं। लेकिन पड़ोस के गांव के मुखिया का सितारा तुम्हारे सितारे को बुलंदी पर नहीं जाने दे रहा। बाबा की जय हो। कोई तरकीब बताइए बाबा, बाबा की जय हो। बच्चा, तुम्हारा सिर जनाना कुल का है। उसे सोना, चांदी, हीरे आदि के गहनों से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम 1 किलो सोना चढ़ा सकते हो तो तुम्हारा सितारा उसके सितारे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और तुम वजीरे आला बन जाओगे। नदी किनारे भव्य कुटिया में नागा और जग्गा रहने लगते हैं। रोज सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। दान दक्षिणा से कुटिया भी भरने लगती है। तभी मौसम में तब्दीली आती है और 3 दिन से सितारे बादल के कारण दिखाई नहीं देते। लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग दौड़े दौड़े जग्गा बाबा की झोपड़ी में पहुंचते हैं। इधर नागा और जग्गा को भी लगता है कि सितारों को ठीक करके लोगों के दुख दूर करने का जो ड्रामा किया है वो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए कुछ बड़ा हाथ मारकर भागने की फिराक में थे। आखिरकार मौसम ने उनकी सुन ली। गांव वालों, आपको 3 दिन से सितारे नहीं दिख रहे हैं। हाँ बाबा, हमें बचाइए। आप सभी के सितारे चोरी हो गए हैं। एक बहुत बड़ा चोर आपके सितारे चोरी करके भाग गया है। मैंने उससे बात की है। उसने कहा कि गांव वाले अगर अपने अपने सितारे चाहते हैं तो उन्हें अपने घर के सारे गहने और जेवरात देने होंगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी सारे जेवर लाकर आपको देता हूँ। सभी अपने घर के सारे जेवर लेकर कुटिया में रख देते हैं। उधर करोड़ी मल का दोस्त शहर से फोन करके बताता है कि मौसम की खराबी की वजह से बादल छाए हुए हैं और कल से आसमान साफ हो जाएगा। ये बात करोड़ी मल अपने वालिद को बताता है। नागरमल मुखिया को ये बात बताता है। सभी लोग झोपड़ी पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जग्गा और नागा दोनों हीरे जवाहरात और पैसे लेकर एक कश्ती में लाद कर नदी के रास्ते से भागने की फिराक में हैं। और तभी बादल भी हट जाते हैं और आसमान में सितारे चमचमाने लगते हैं। पकड़ लो इन मक्कारों को। कोतवाल जी, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन बुरा ही होता है। पैसा अच्छे कर्मों से मेहनत करके ही कमाया जाता है। जल्द और बुराई करके बनाए गए पैसे कभी नहीं टिकते। जैसे नागा और जग्गा जेल में सड़ रहे हैं। एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने खानदान का गुजारा करता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे खानदान के साथ। उसके खानदान में उसकी बीवी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की मजदूरी। हाँ, कल मैंने मकान मालिक को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपकी मजदूरी बढ़ जाए। इतनी कम कमाई में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? ऊपर वाला करे ऐसा जल्दी हो, लेकिन अब जो भी है यही है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने पे आफत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। हाँ बेशक, ऊपर वाले का हम पर बड़ा करम है। अशोक और अनुराधा भले ही मुफलिस थे, लेकिन उन्हें अपने हालात से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश थे और मुतमईन थे।
अनुराधा अक्सर दूसरे गरीबों की मदद किया करती थी। एक रोज की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग उस ज़ईफ़ा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भाईजान, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई रोज से भूखी अम्मा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तुम लम्हे जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब फिर से भूख लगेगी तो कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे हमेशा मदद मिलेगी। अनुराधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बेहद नेक था। वो भी लोगों की मदद किया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत वजनी है। मजदूर के लिए ये कौन सा वजनी होगा? चलिए। अशोक ने उस ज़ईफ आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही मुफलिस थे, लेकिन वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के नेक कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते थे। कुछ माह बीत गए। एक रोज अशोक एक इमारत का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बांस टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी कर दी। ऊपर वाले का करम है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जोड़ने में 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 माह? 2-3 माह आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 माह अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूंगी, जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था ऊपर वाला ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का ही राशन आएगा। अब मुझे जल्द ही काम मिल जाना चाहिए। कितने रोज से मैं काम की तलाश में हूँ। ऊपर वाला करम करे मुझे जल्दी से काम मिल जाए, ताकि हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, ऊपर वाले से यही दुआ है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी माली हालत खराब थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले ली। जब अनुराधा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे तो वो घर लौट रही थी और उसकी नजर उसी ज़ईफ़ा पर पड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 ही रुपए हैं। इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने इधर उधर देखा तो एक पकोड़े की दुकान नजर आई। मुझे 10 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकोड़े ले लिए। वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस ज़ईफ़ के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, लेकिन ये खा लो। उस ज़ईफ़ा ने पकोड़े के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकोड़े तुम अपने घर ले जाओ बेटी। समझ लो, मैंने खा लिया। आज इस पर तेरा हक है।
लेकिन अम्मा आपको भूख लगी है ना? वो ज़ईफ़ा मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनुराधा घबरा गई। वो ज़ईफ़ा को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अनुराधा घर लौटी और अपने शौहर को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मालूम नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा वो पकोड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला तो वो हैरान रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये हकीकत है क्या? हाँ, लेकिन कैसे? शायद उस ज़ईफ़ा की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे दुआ दी थी। शुक्रिया, तुम बहुत नेक है बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे हमेशा मदद मिलेगी। हाँ, तुम्हारी नेकी की वजह से आज हमें अपनी जरूरत के वक्त मदद मिली है अनुराधा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। इस रोज के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं था। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर ले लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने खानदान का गुजारा करता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे खानदान के साथ। उसके खानदान में उसकी बीवी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की मजदूरी। हाँ, कल मैंने मकान मालिक को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपकी मजदूरी बढ़ जाए। इतनी कम कमाई में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? ऊपर वाला करे ऐसा जल्दी हो, लेकिन अब जो भी है यही है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने पे आफत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। हाँ बेशक, ऊपर वाले का हम पर बड़ा करम है। अशोक और अनुराधा भले ही मुफलिस थे, लेकिन उन्हें अपने हालात से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश थे और मुतमईन थे। अनुराधा अक्सर दूसरे गरीबों की मदद किया करती थी। एक रोज की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग उस ज़ईफ़ा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भाईजान, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई रोज से भूखी अम्मा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तुम लम्हे जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब फिर से भूख लगेगी तो कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे हमेशा मदद मिलेगी। अनुराधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बेहद नेक था। वो भी लोगों की मदद किया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत वजनी है। मजदूर के लिए ये कौन सा वजनी होगा? चलिए। अशोक ने उस ज़ईफ आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही मुफलिस थे, लेकिन वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के नेक कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते थे। कुछ माह बीत गए। एक रोज अशोक एक इमारत का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और
बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बांस टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी कर दी। ऊपर वाले का करम है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। घुटने की एक हड्डी टूट गई है जिसे जोड़ने में 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 माह? 2-3 माह आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था, उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 माह अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था ऊपर वाला ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का ही राशन आएगा। अब मुझे जल्द ही काम मिल जाना चाहिए। कितने रोज से मैं काम की तलाश में हूँ। ऊपर वाला करम करे मुझे जल्दी से काम मिल जाए ताकि हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, ऊपर वाले से यही दुआ है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी माली हालत खराब थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले ली। जब अनुराधा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे तो वो घर लौट रही थी और उसकी नजर उसी ज़ईफा पर पड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 ही रुपए हैं। इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने इधर उधर देखा तो एक पकोड़े की दुकान नजर आई। मुझे 10 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकोड़े ले लिए। वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस ज़ईफ के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, लेकिन ये खा लो। उस ज़ईफा ने पकोड़े के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकोड़े तुम अपने घर ले जाओ बेटी। समझ लो मैंने खा लिया, आज इस पर तेरा हक है। लेकिन अम्मा, आपको भूख लगी है ना? वो ज़ईफा मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनुराधा घबरा गई। वो ज़ईफा को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अनुराधा घर लौटी और अपने शौहर को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मालूम नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकोड़े दिखाओ। अशोक ने पकोड़े का कागज खोला तो वो हैरान रह गया। कागज के अंदर सोने के पकोड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये हकीकत है क्या? हाँ, लेकिन कैसे? शायद उस ज़ईफा की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे दुआ दी थी। शुक्रिया, तुम बहुत नेक है बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। हाँ, तुम्हारी नेकी की वजह से आज हमें अपनी जरूरत के वक्त मदद मिली है अनुराधा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। इस रोज के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं था। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर ले लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी।